Now, good morning, all of you. We are dealing with topic breathing and exchange of gases, that is big. And we are dealing with regulation of respiration. और ये जो regulation of respiration है दोस्तों, इसमें हम बात कर रहे हैं there are two type of regulation of respiration, that is neural regulation and chemical regulation. In neural regulation there are two part, one is the medulla oblongata, another is the pons varolai of brain, which regulate the regulation or which regulate the breathing, that is inspiration and expiration. In medulla oblongata there is a one important area called as a respiratory rhythm center. और ये जो respiratory rhythm center है दोस्तों, it has a two part, dorsal respiratory group which control mainly inspiration and ventral respiratory group which control both inspiration and expiration. And this is the main area which control normal breathing or normal respiration. But उसके ऊपर एक moderator है, उसके ऊपर एक ऊपर वाला एरिया है जिस एरिया का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. और ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, इट इज प्रेजेंट इन pons varolai. Pneumotaxic center is present in pons varolai. So there is another center above the medulla oblongata called as a pneumotaxic center present in pons varolai and which moderate the respiratory rhythm center or which have control over the respiratory rhythm center. And generally when that pneumotaxic center get activated, it inhibits the inspiration or it decreases the duration of inspiration. Now there is another area called as a chemosensitive area present in medulla oblongata. Now ये जो chemosensitive area है in medulla oblongata, it detect the increased level of carbon dioxide or H plus ion in blood. And whenever there is an increased level of carbon dioxide or H plus level in blood, that chemosensitive area receive a signal and send it to respiratory rhythm center कि दादा no, there is an increased level of CO2 or H plus ion in blood, so it has to be removed from the body. तो उसको बाहर फेंकना पड़ेगा. ये ऐसा सिग्नल देता है. कल हमने इसके बारे में बात की थी. आज बात करेंगे केमिकल रेगुलेशन, बट बिफोर दैट लेट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है दैट इज ऑफ कहां पे दोस्तों, ऑफ pons varolai. कहां पे है न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ pons varolai? कहां पे है न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ pons varolai? नंबर 1 न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ pons varolai. नाउ यहां पे जो है दोस्तों न्यूमोटैक्सिक सेंटर, नाउ दिस सेंटर okay act as a moderator of respiratory rhythm center or it moderate the function of respiratory rhythm center. ये जो सेंटर है दोस्तों, इसका क्या काम है? It moderate means control, it moderate the function of respiratory rhythm center, which is the main center of regulation present in respiratory rhythm center, that is present in medulla oblongata. You all know that. So it moderates the function of respiratory rhythm center. And when MCQ, when दोस्तों, when that pneumotaxic center is activated, whenever that pneumotaxic center activate हो जाएगा, pneumotaxic center is activated, stimulate. ये activate जब होता है दोस्तों, it inhibit the inspiration and decreases the duration of inspiration. So pneumotaxic center is when pneumotaxic center is activated दोस्तों, it means what? That center inhibit the inspiration, inhibit the
process of inspiration. It inhibits the inspiration and decreases the duration of inspiration. Decreases the duration of inspiration. और inspiration का अगर duration decrease हो रहा है, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ये याद रखो। इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन अगर डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल बी इंक्रीज। मान लो नॉर्मली ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है, ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, थोड़ा सा इससे भी शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, पर समझने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। बाहर जब सीटी बजाऊंगा तो एक्सपिरेशन है और हाथ जब ऊपर जाएगा तो इंस्पिरेशन है। मान लो ये नॉर्मली इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये नॉर्मल है। बट ये क्या करेगा, ये जो नीमोटैक्सिक सेंटर, जब CO2 का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ये नीमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा ऑब्वियसली, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इट इनहिबिट द इंस्पिरेशन और डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। सपोज ये इंस्पिरेशन ऐसा है, बस इतना ही है, बस इतना ही है, तो फिर एक्सपिरेशन हो जाएगा। ये रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया। इतना नहीं होता है पर मैक्सिमम 40-45 मैंने देखा है जब मैं इंटर्नशिप में था। तो दोस्तों दैट इज अ नीमोटैक्सिक सेंटर ऑफ पॉन्स वेरोला। नीमोटैक्सिक सेंटर ऑफ पॉन्स वेरोला, ये उसका काम है, ये उसका काम है। तो हमेशा याद रखो दोस्तों, दैट इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो है, रेस्पिरेटरी रेट मींस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, वो होता है दोस्तों 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, ओके, पर मिनट इन अडल्ट। किसमें दोस्तों? इन अडल्ट, हम में। बट इन इन्फेंट, जो बच्चू है, इन्फेंट मीन्स लेस देन 1 ईयर और नियोनेट, ओके, दैट नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, तुम्ही जर बच्चू मध्ये बघितला तर तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट खूप फास्ट असतो त्याचा। इट इज नियर अबाउट दोस्तों 42, लक्षात ठेवा, इट इज अबाउट 42, 45 किंवा 44 ब्रीथ पर मिनिट इन इन्फंट। इन्फंट म्हणजे अ बच्चू लेस दॅन ऑफ 1 ईयर, अ बच्चू लेस दॅन ऑफ 1 ईयर, त्याला म्हणायचं इन्फंट। प्लीज रिमेंबर, हे गोष्टी माहित पाहिजे तुम्हाला। नोट, किसे कहेंगे नियोनेट, सांगितलंय मी तुम्हाला, शिकवलेलं आहे। नियो मीन्स नया, नेट मीन्स जन्म, लेस देन 28 ईयर, 28 डेज बच्चू, ओके, लेस देन 28 डेज बेबी, उसे कहते हैं दोस्तों नियोनेट। और इन्फंट मीन्स, इन्फंट का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर वाला बच्चू, लेस देन 1 ईयर बेबी, उसे कहते हैं इन्फंट। तो हर कोई इन्फंट, याद रखो, कहीं ना कहीं वो नियोनेट होता है। और इथं बोलता है ऑल नियोनेट आर इन्फंट बट ऑल इन्फंट आर नॉट नियोनेट। समजते का? ऑल नियोनेट आर इन्फंट, 1 वर्षापेक्षा खालचं, मग तो पहिल्या दिवसाचं का असं ना, त्याला इन्फंटच म्हणतो आपण, असं पण म्हणता येईल। नियोनेट म्हणजे नेमकाच जन्म झाला, त्याचा नेमकाच जन्म झालाय, नियोनेट, ओके। त्याला आणि 28 दिवसापेक्षा छोटा बेबी आहे त्याला म्हणायचं नियोनेट, आणि इन्फंट म्हणजे 1 वर्षापेक्षा कमी बेबी आहे त्याला म्हणायचं इन्फंट। तर इन्फंट मध्ये हा रेस्पिरेटरी रेट 40 किंवा 44 असतो। तुम्ही जर कधी एखादं नवीन बाळ जन्माला आले तुमच्या घरी आणि त्याला समजा आंघोळ वगैरे करून ओके, उसको नहलाया सहलाया और फिर वो अभी उसने दूध भी पिया है और अभी वो इंजॉय कर रहा है, ओके, वो साइकिलिंग वगैरह करते रहते हैं बच्चे, तो उसका ना एब्डोमिनल जो है, थोरेसिक और एब्डोमिनल मूवमेंट आप काउंट कर लो, आपको रेस्पिरेटरी रेट मिल जाएगा उसका। कैसे काउंट करते हैं रेस्पिरेटरी रेट? दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ चेस्ट देखते हैं दोस्तों, ओके। अब देख लो उसका जो है इंटरकॉस्टल मसल या फिर एब्डोमिनल मसल का अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट देख लो, 1 मिनट में 40, 35, 45 ऐसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। डन, आगे बढ़ते दोस्तों और बात करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, नाम में ही काम है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन?
इससे कि पहले हम बात करें व्हाट इज द केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कीमो रिसेप्टर और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेप्टर। पहले हमें जानना पड़ेगा कि रिसेप्टर मतलब क्या है, रिसेप्टर का मतलब क्या है, और फिर बात करेंगे कीमो रिसेप्टर का मतलब क्या है, और फिर जानेंगे कि कौन से कीमो रिसेप्टर है। रिसेप्टर इज एनी सेल, टिश्यू और ऑर्गन इन आवर बॉडी व्हिच डिटेक्ट द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाउ प्लीज पे अटेंशन, कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा दोस्तों। ये जो पहले वाले जो टॉपिक है, जो पहले 4-5 टॉपिक है, उसमें मैं बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी रिसेप्टर पता नहीं है, पर वो बोलते हैं कि कीमो रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट है ना, व्हाट इज मीन बाय रिसेप्टर। तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए रिसेप्टर क्या है। इट इज एनी सेल, इट मे बी सेल, इट इज एनी सेल, टिश्यू, it is any cell, tissue or organ in our body, okay, which detect and receive stimulus, which detect and receive stimulus, wow, and convert it into nerve impulse, and convert that stimulus into nerve impulse। समझाता हूं क्या होता है into nerve impulse, इसे कहते हैं रिसेप्टर। nerve impulse इसे कहेंगे रिसेप्टर। पाठांतराच्या गोष्टी नाही, त्या समजून घेण्याच्या गोष्टी, पाठ नका करू ना। व्हॉट इज बाय रिसेप्टर? वो रिसीवर है दोस्तों। सपोज सकाळी सकाळी मी चहा करत होतो, आज मी सकाळी एक 5:30 ला उठलो, 5:30 ला उठल्याच्या नंतर 6 ला DNRP लेक्चर, मी थोडंसं फ्रेश वगैरे झाल्यानंतर चहा करायला घेतला आणि 6 ला DNRP लेक्चर घेतलं। हे माझं डेली रुटीन आहे रोज। समजा कधी कधी मी चहा स्वतःच बनवतो, आज नाही बनवलं पण कधी बनवतो, तर कभी कभी क्या होता दोस्तों की चाय बनाते वक्त वो जो गरम पतेला है, त्याला तुम्ही काय म्हणता हिंदीत माहित नाही, जे भांड है गरम, कभी कभी मेरा हाथ वहां पे लग जाता है, और व्हाट हैपन, आई सडनली विड्रॉ माय हैंड फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट। दैट इज अ न्यूरल रिफ्लेक्स। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी मैंने टच किया, ओके, जब भी मैंने टच किया दोस्तों, कहाँ पे, वो जो हॉट ऑब्जेक्ट जहां का टेम्परेचर हाई था, तो मेरे स्किन में थर्मो रिसेप्टर थे। टेम्परेचर रिसीव करने वाले कुछ सेल्स थे, उन्हें कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिमुलस? ये स्टिमुलस क्या है लोगों को पता ही नहीं है। स्टिमुलस का मतलब क्या है? स्टिमुलस मीन्स दोस्तों दैट इज एनी चेंज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल और म्हणजे एक्सटर्नल मीन्स बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है, और इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स हमारे बॉडी का इन्वायरमेंट। एनी चेंज इन एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट उसे कहते हैं स्टिमुलस। तो वहां पे चेंज था। चेंज क्या था? टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, मैंने वहां टच कर दिया एंड देन आई सडनली विड्रॉ माय हैंड। तो हुआ क्या, जब भी मैंने मेरा हाथ उस हॉट ऑब्जेक्ट को लगाया, तब यहाँ पे मेरे स्किन में थर्मो रिसेप्टर थे, और वो थर्मो रिसेप्टर, थर्मो क्योंकि वो टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम है थर्मो रिसेप्टर। तो उन्होंने वो टेम्परेचर डिटेक्ट कर लिया, और इमीडिएटली तो वो टेम्परेचर हुआ स्टिमुलस, और मेरे स्किन के अंदर जो सेल है वो गए थर्मो रिसेप्टर, उन्होंने वो स्टिमुलस को डिटेक्ट कर दिया और कन्वर्टेड इनटू द नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स को कन्वर्ट कर दिया नर्व इंपल्स में, और यहाँ पे पूरे न्यूरॉन होते हैं बॉडी के अंदर, तो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा उसे भेजा गया कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में। वहां पे एनालिसिस किया गया, अरे कौन सा रिसेप्टर आया, कौन सा स्टिमुलस आया, टेम्परेचर है, हाई है, लो है, हाई है, कहां से आया है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड से आया है, राइट साइड से एग्जैक्ट कहां से आया है, तो इंडेक्स फिंगर से आया है। तो कौन सा मसल है जो इमीडिएटली उस फिंगर को वहां से बाहर निकाल सकता है? तो यह है बाइसेप। तो बाइसेप को सिग्नल भेजो, बाइसेप को सिग्नल भेजो, फिर यहां से सिग्नल निकलते हैं विदिन द मिलीसेकंड, और बाइसेप का हो जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं फ्लेक्शन, और आई सडनली विड्रॉ माय हैंड। बहुत बाकी के भी मसल होते हैं, पर मेन है बाइसेप। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो ये एक न्यूरल रिफ्लेक्स है। तो दोस्तों रिसेप्टर क्या करते हैं, मुझे बताना यह है कि रिसेप्टर डिटेक्ट दी चेंजेस इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, आइदर दैट इन्वायरमेंट इज आउटसाइड आवर बॉडी और इनसाइड आवर बॉडी। आर यू गेटिंग मी और नॉट?
समझे या नहीं कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेप्टर, समझे या नहीं? गस्टैटो रिसेप्टर क्या कहते हैं? कोई भी हम चीज खाते हैं, कोई भी यम्मी चीज, कोई भी डिलीशियस चीज, कोई भी आइसक्रीम या फिर पास्ता या फिर कुछ भी, जब हम खाते तो हम बोलते वाओ व्हाट अ टेस्ट। तो होता क्या है, वो जो टेस्ट है कुछ केमिकल्स है उसमें, तो टंग के ऊपर गस्टैटो रिसेप्टर है, दीज आर द टेस्ट रिसेप्टर, सो वी दैट रिसेप्टर डिटेक्ट दैट टेस्ट एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। वहां पे एक टेस्ट एरिया होता है टेम्पोरल लोब में, और दैट एरिया डिटेक्ट दैट which type of that taste is either is it sweet, bitter or sour or whatever it may be, spicy, yeah, spicy is not taste actually, पर कुछ भी ओके तो डिटेक्ट कर लेते हैं और हम वैसा रिएक्ट करते हैं। कोई बीटर है, आपण काकडी खायला लगे तो क्या असं थोडस स्वीट टाइप टेस्ट येईल त्याची, कधी कधी ते कडू लागते की लगेच ते सिग्नल वर जातात, लगेच इमोशन होते ई कडू आहे। किंवा आंबा खायला घेतो, कधी कधी गोड असतो, कधी आंबट असतो। तर हे रिसेप्टर ये ऐसे सेल होते हैं, एनी चेंज इन एक्सटर्नल स्टिमुलस और इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, इससे कहते हैं स्टिमुलस। और ये क्या है दोस्तों, और फिर न सेंसरी न्यूरॉन क्या होते बताता हूं। सेंसरी न्यूरॉन मीन्स कुछ ऐसे न्यूरॉन होते, सेंसरी नर्व या फिर सेंसरी न्यूरॉन। एक चीज बताना चाहूंगा, ओके सेंसरी न्यूरॉन, ओके that these are the neuron or sensory nerve fiber होते हैं actually, sensory nerve fiber, sensory nerve, okay these are the nerve which send signal, nerve, okay which send signal, which send signal, which send signal, signal from receptor to CNS, from receptor to CNS म्हणजे ब्रेन, रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम म्हणजे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड, त्याला म्हणजे सेन्सरी नर्व, आणि त्याच्या उलटे असतात मोटार नर्व। नुसतं शब्द ऐकत राहा, पुढे जातो मी। मोटार नर्व म्हणजे काय, मोटार नर्व म्हणजे ह्याच्या उलट दीज आर द नर्व्स, नर्व फायबर विच सेंड सिग्नल किंवा नर्व इम्पल्स, विच सेंड सिग्नल नर्व इम्पल्स फ्रॉम CNS टू रिसेप्टर नव्हे, आता असतं इफेक्टर म्हणजे मसल, आता असतं इफेक्टर म्हणजे मसल, समजून घ्या। इफेक्टर म्हणजे काय, इथं येतील मसल ज्या की काम करतात नंतर, मसल जसं माझ्या बायसेपला सिग्नल आले वरून। ये क्लियर है? बस ये नीचे दो वाले शब्द अगर क्लियर भी नहीं है तो छोड़ दो, रिसेप्टर और स्टिमुलस के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ रिसेप्टर होते हैं। मान लो एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हार्ट के बाद, हार्ट जो है, हार्ट से एक बड़ा सा आर्टरी निकलता है, उसे कहते हैं अओर्टा। और ये जो एओर्टा है दोस्तों, ये जो एओर्टा है ये ऐसा आर्च बनाता है, इसीलिए उसे कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। इसलिए इसका नाम क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा, इसलिए इसका नाम है आर्च ऑफ एओर्टा। और इस आर्च ऑफ एओर्टा के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस, और एक ब्रांच है दोस्तों दैट इज कैरोटिड आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एक सपोज मान लो लेफ्ट साइड पे है तो दूसरी है राइट साइड पे। ये किसको सप्लाई करती है, दिस कॉमन कैरोटिड आर्टरी दोस्तों सप्लाई टू ब्रेन, ब्रेन को सप्लाई करती है ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इट सप्लाई टू ब्रेन, याद रखो ये ब्रेन को सप्लाई करती है। व्हाट इज दिस, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, याद रखो दो चीजें कॉमन, ये लेफ्ट वाली, ये लेफ्ट वाली, ये राइट वाली, ये हार्ट से आया है, आर्च है, ये सबसे बड़ा आर्टरी होता है बॉडी का, आर्च ऑफ एओर्टा। तो इसके बहुत अलग अलग ब्रांचेस है, एक ब्रांच बताता हूं दैट इज CCA, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन क्यों, क्योंकि ये जो आर्टरी है फिर इसी से एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल आर्टरी बनने वाली है। ये हो गई इंटरनल कैरोटिड और ये हो गई एक्सटर्नल कैरोटिड, ओके ये हो गई इंटरनल, सॉरी ये हो गई एक्सटर्नल कैरोटिड, और दोस्तों ये हो गई मान लो इंटरनल कैरोटिड, और ये इंटरनल कैरोटिड ब्रेन को सप्लाई करते हैं। मान लो अभी यहाँ पे है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, यहाँ पे कौन सा सेंटर, यहाँ पे है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, MO, ये है मेडुला ऑब्लंगेटा का विच सेंटर, यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा का दोस्तों है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ओके यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा का, यहाँ पे दोस्तों RRC,
respiratory rhythm center of medulla oblongata. So this is respiratory rhythm center of medulla oblongata. This is a respiratory rhythm center of medulla oblongata. समझ लो चीज को, कहां से सिग्नल जाएंगे कहां पे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा ये है। नाउ दोस्तों ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम है दैट इज आर्च ऑफ अओर्टा। क्या नाम है इस स्ट्रक्चर का? इसका नाम है आर्च, बानासार के म्हणून आर्च ऑफ अओर्टा, क्या आर्च ऑफ एओर्टा बोला जाता है उसे, आर्च ऑफ एओर्टा। और ये है दोस्तों दैट इज, दिस इज कॉमन carotid artery. Carotid artery supply to brain, artery which supply blood to brain. याद रखो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लिखो गई तो भी, सप्लाई ब्लड टू ब्रेन। नाउ और यहाँ पे कुछ रिसेप्टर है इस आर्च ऑफ अओर्टा में, तो मेन तो रिसेप्टर यहाँ पे बाइफर्केशन पे है दोस्तों। ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसका नाम है एक्सटर्नल, अभी सिर्फ इसको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है, कैरोटिड आर्टरी। आपको बताऊं कॉमन कैरोटिड ये है, यहाँ पे आर्च ऑफ अओर्टा है, तो आप अगर ये है ये ऐसा, हे जे अँगल आहे ना याच्या खाली जर हात ठेवायचं, सिरियस अंगठा ठेवा आणि दाबा थोडंसं, तुम्हाला एक पल्सेशन जाणवत असेल, जाणवायला ओके, पल्सेशन फील हो रहा है कि नहीं? पल्सेशन फील रहा है, दोनों साइड से फील होगा, हो रहा है। जैसे कि रेडियल आर्टरी का पल्सेशन यहाँ पे फील होता है, वो यहाँ पे ओके टुवर्ड द थंब साइड पे, वैसे यहाँ पे पल्सेशन फील होता होगा, दैट इज नथिंग बट द कैरोटिड आर्टरी। याद रखो, ये कट हो गई तो समझो गए आप। कॉमन कैरोटिड आर्टरी सप्लाई टू द ब्रेन। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स है इसके बाइफर्केशन के, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स है दोस्तों, और ये जो रिसेप्टर है इन्हें कहा जाता है कैरोटिड बॉडीज। ये जो रिसेप्टर है ये कैरोटिड आर्टरी में ज्यादा होते हैं, इन्हें कहा जाता है दोस्तों कैरोटिड बॉडीज। दीज आर द कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर है कैरो कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन के ऊपर, इन्हें कहा जाता है कैरोटिड बॉडीज, इन्हें कहा जाता है कैरोटिड बॉडीज एट बाइफर्केशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड बॉडीज। और ये आर्च ऑफ अओर्टा के ऊपर भी रिसेप्टर है, ओके उसके इनर वॉल पे, ये ब्लड वेसल के इनर वॉल के ऊपर रिसेप्टर है, इन्हें कहा जाता है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है दैट इज एओर्टिक बॉडी, एओर्टिक बॉडीज। तो ये क्या है, ये दो क्या है, दीज आर कीमो रिसेप्टर है। कैसे रिसेप्टर है? कीमो रिसेप्टर। काम का करत है, काम करत है टू डिटेक्ट द चेंज इन द level of or change the detect the change in the level of chemicals। केमिकल्स की लेवल ब्लड में चेंज होती है या नहीं, ये डिटेक्ट करने के लिए है कीमो रिसेप्टर। और कौन से केमिकल? ये जो कीमो रिसेप्टर किसे डिटेक्ट करेंगे? ये है दोस्तों कीमो रिसेप्टर, दीज आर द कीमो रिसेप्टर। ये जो है ये मेन होता है, दैट इज कॉमन कैरोटिड वाला, ये मेन कैरोटिड बॉडीज मेन है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट द चेंज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, CO2 का लेवल अगर बढ़ रहा है ब्लड में, क्योंकि ये ब्लड वेसल में ही है, हे रिसेप्टर कुठे आहेत, ब्लड वेसलच्या वॉलवर आहे, आणि जर का कार्बन डाइऑक्साइड वाढलं किंवा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है दोस्तों ब्लड में, ये देखते रहते हैं, टुकुर 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 देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा जैसे रोड के ऊपर लगता है, वैसे ही ये कैरोटिड आर्टरीज, कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज ओके नजर जमाए हुए हैं किसके ऊपर, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, लेवल ऑफ H+ आयन के ऊपर। अगर ब्लड में, ब्लड की बात करें पूरे, तो अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो ये कीमो रिसेप्टर गेट स्टिमुलेटेड, ये कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेट मींस वो जो स्टिमुला है, स्टिमुलस क्या है इनके लिए, इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड और इंक्रीज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ब्लड, तो वो उसे डिटेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। और जैसे ही मान लो, जैसे ही वो इंक्रीज लेवल ऑफ H+ आयन और कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड डिटेक्ट हो गया, सपोज मान लो यहाँ पे भी H+ आयन, यहाँ पे भी H+ आयन, यहाँ पे भी H+ आयन, या फिर CO2 बढ़ रहा है,
यहाँ पे भी CO2 बढ़ रहा है। तो होता क्या है दोस्तों, दे डिटेक्ट दिस सिग्नल and send, okay, they detect these stimulus and send a signal to respiratory rhythm center and send signal to respiratory rhythm center. ये aortic body as well as दोस्तों ये जो दूसरे बॉडीज है, ये जो दूसरे बॉडी है, they also send a signal, ये जो दूसरे बॉडीज है, they also send a signal to respiratory rhythm center. और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फिर क्या करता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. आर यू गेटिंग मी और नॉट? सिंपल, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये जो है ये है नर्व्स, एक्चुअली सेंसरी नर्व्स होते हैं दोस्तों. ये है नर्व, ये भी है नर्व. वाया नर्व ये सिग्नल ऐसे सेंड कर लेते हैं, ठीक है. ये है नर्व, याद रखो. तो नर्व के द्वारा ये सिग्नल सेंड करते हैं. दिस इज एन नर्व, क्रैनियल नर्व के द्वारा ये सिग्नल सेंड कर लेते. कहा? रेस्पिरेटरी आरसीसी आरएसएस आरएल आरआरसी म्हणजे काय, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा, वहां. और फिर रेस्पिरेशन डिक्रीज, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है. यस और नो? यस और नो? करता है, करता है. यस. ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. तो दोस्तों ये हो गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. सेम उधर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. कैरोटिड आर्टरी सप्लाई ब्लड टू ब्रेन. MCQ. ओके, क्लियर है का? ओके, जर लक्षात नाही, हे नॉर्मल कधी पण चालू आहे, नॉर्मल कधी पण चालू आहे. फर्स्ट ब्रीथला हे असंच होतं, फर्स्ट ब्रीथला हे असंच होतं. किमो सेन्सिटिव्ह एरिया किंवा हे जे कॅरोटिड आर्टरी आणि कॅरोटिड अवोर्टिक बॉडीज आहेत, कॅरोटिड बॉडीज आणि अवोर्टिक बॉडीज, हे दोन लक्षात ठेवा. नाव काय? किमो रिसेप्टर कुठले आहेत? अवोर्टिक बॉडीज, the bodies which are present in arch of aorta, or carotid bodies, the bodies which are present in common carotid artery or at bifurcation of common carotid artery. फर्स्ट ब्रीथ ला सुद्धा हे ऍक्टिवेट होतात आणि फर्स्ट ब्रीथ ला खास करून कीमो सेंसिटिव एरिया भी एक्टिवेट होता है. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लिख के देता हूं दोस्तों. बात कर रहे हैं केमिकल रेगुलेशन. मुझे ये बोलना है बहुत सारे लोगों को, केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. बहुत सारे लोगों को लगता है कि कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट द कीमो सेंसिटिव एरिया. गलत. जैसे कि कीमो सेम है, मार दो, ठोक दो. गलत. कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट विच एरिया ऑफ ब्रेन. MCQ. केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में मेरा क्वेश्चन है आपसे, कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट विच एरिया? स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. MCQ. नाउ दोस्तों बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कीमो रिसेप्टर. लिख के देता हूं. कीमो रिसेप्टर्स क्या है? कीमो रिसेप्टर दोस्तों, these are group of cells, these are receptors, these are receptors दोस्तों, receptors which detect change in the common definition level, which detect the change in the level of chemicals. These are the detector which is chemicals, okay, in body. Change in the level of chemical in body, उन्हें कहते हैं कीमो रिसेप्टर. तर यहाँ इथं दोन आहेत टाइप्स, म्हणजे ऍक्च्युअली खूप जास्त असतात, पण इथं दोन टाइप आहेत. त्याचे टाइप्स दोन आहेत. दॅट इज टाइप्स म्हणण्यापेक्षा टाइपच म्हणूया. कीमो रिसेप्टर दोन आहेत, लक्षात ठेवा. विथ लोकेशन कीमो रिसेप्टर, ओके, फॉर रेस्पिरेशन. हे महत्वाचं. तसे तर खूप जास्त वेगवेगळे प्रकार आहेत, बट फॉर रेस्पिरेशन के लिए थोड़ा सा अलग है दोस्तों. इन रेस्पिरेशन वो दो टाइप के हैं. एक क्या टाइप है? दैट इज मेन है कैरोटिड बॉडीज. कुठे आहेत रे कैरोटिड बॉडीज? इन at the bifurcation of common carotid arteries. आणि दुसरे असतात दैट इज एओर्टिक बॉडीज एट द आर्च ऑफ एओर्टा. ठीक है, लक्षात ठेवा. नाउ ये है दोस्तों, ज्यादा होते हैं और ये मेन है, दैट इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी वाले. सो ये जो है दैट कैरोटिड बॉडीज दोस्तों, कैरोटिड बॉडीज कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड ऍट बायफर्केशन. बायफर्केशन म्हणजे एकापासून दोन ब्रांचेस बनल्यात, त्याला म्हणायचं बायफर्केशन.
located at a bifurcation of common carotid artery. कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है? आर्च ऑफ एओर्टा की। ये दोनों है, राइट और लेफ्ट। और ये जो एओर्टिक बॉडीज होते हैं दोस्तों, एओर्टिक बॉडीज क्या करते हैं? एओर्टिक बॉडीज लोकेटेड एट आर्च ऑफ एओर्टा, लोकेटेड एट आर्च ऑफ एओर्टा, जो एओर्टा है वहां पे आर्च ऑफ एओर्टा। नाउ दोस्तों ये जो है कैरोटिड, ये कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं? कीमो रिसेप्टर दोस्तों इनका काम क्या है? इन दोनों कीमो रिसेप्टर का काम क्या है? These chemoreceptors detect the change in or detect the increased level of carbon dioxide, that is CO2 and H plus ion in blood, and send a signal to respiratory rhythm center of medulla oblongata and get stimulated, वो खुद stimulate होते हैं, get stimulated, okay, and then दोस्तों get stimulated and send these receptor जो है दोस्तों receptor send नॉर इम्पल्स यानी सिग्नल, किसको? सेंड सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अरे काय जबरदस्त कॉन्सेप्ट है रे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्योंकि ये मेन हीरो है अपना, इस बाकी सब साइड हीरो है, RRC मेन हीरो है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा, तो दोस्तों ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा? सो RRC इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सो ये जो हमारा RRC है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी RR रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ताकि CO2 बाहर फेंका जाए। आर यू गेटिंग मी और नॉट? दिस इज ए क्लियर, मक्खन क्लियर है ये। ओके, इज दैट क्लियर? केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, पहले डायग्राम फिर डिस्क्रिप्शन। वो जो नर्व होते हैं इसके बारे में भी अगर बात करेंगे दोस्तों, कमी शक्यता ते प्रश्न याची। ग्लॅसोफॅरेंजियल नर्व आणि व्हेगस नर्व असे दोन नर्व आहेत। कॅरोटिड आर्टरी कडनं जी नर्व निघते, सिग्नल घेऊन जाते, कॅरोटिड बॉडीज कडनं ती असते ग्लॅसोफॅरेंजियल नर्व, येणार आहे सिलेबसला पुढे। और जो होती है दोस्तों, जो नर्व इंपल्स लेके जाती है कहां से? फ्रॉम aortic बॉडी, वो होती है वेगस नर्व, वेगस नर्व, okay, which carries nerve impulse from aortic bodies and glossopharyngeal nerve। नाम में बहुत दम है, glossopharyngeal, ग्लासो मीन्स टंग, pharynx उसको सप्लाई करती है। glossopharyngeal nerve carries the nerve impulse from carotid bodies, carries the nerve impulse from carotid bodies, याद रखो, carries the nerve impulse from carotid body। क्लियर है या नहीं? ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ब्लड बफर? श्रेया ये अलग बात है, ओके। ब्लड बफर ये टॉपिक नहीं है, ये वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? ये क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज, नाउ बात करते हैं दोस्तों डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या डिसीज है। व्हाट आर द डिसीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? ओके, what are the different diseases of respiratory system? याद रखो। that is टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ, लास्ट टॉपिक है दोस्तों, that is disorder of respiratory, disorder of respiratory systems, disorder of respiratory system। तो कौन से डिसऑर्डर है? व्हाट आर द डिफरेंट डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? नंबर 1 पे आएगा दोस्तों अस्थमा, नंबर 1 पे आएगा अस्थमा। फिर आ जाएगा एम्फाइसेमा,
नंबर 3 पे आ जाएगा फिर दोस्तों, दैट इज ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। नंबर 4 पे आ जाएगा दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस। नंबर 5 पे आ जाएगा दैट इज निमोनिया। नंबर 6 पे आ जाएगा कॉमन कोल्ड, फ्लू, सर्दी ताप खोखला, फ्लू, या फिर उसे बोलते हैं कोराइजा। ओके, नंबर 7 पे फिर आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद डिप्थेरिया, 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 डिप्थेरिया। फिर उसके बाद आ जाएगा दोस्तों दैट इज हुपिंग कफ, हुपिंग, हुपिंग कफ। याद दिलाता हूं ये क्या होते हैं सब, हुपिंग कफ। 8, 9, फिर आ जाएगा दोस्तों इसके बाद सार्स, सार्स। फिर उसके बाद आ जाएगा 10 नंबर पे कोविड-19, कोविड-19। एक एक सेंटेंस लिखता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये जो है दोस्तों, इट इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, एक एलर्जिक डिसऑर्डर है अस्थमा, एलर्जिक डिसऑर्डर caused due to allergen, allergen, allergen। इसमें होता है दोस्तों, एक कीवर्ड है wheezing, नॉइजी ब्रीदिंग होता है, उसे कहते हैं wheezing इज द मेन सिम्टम है, इज मेन सिम्टम है, मेन फीचर है इसका, wheezing, नॉइजी ब्रीदिंग होता है। ओके, इंस्पिरेशन के वक्त नहीं, पर एक्सप्रेशन के वक्त ऐसा साउंड आता है। wheezing, इम्फाइसेमा के बारे में एक लाइन, एक लाइन इम्फाइसेमा के बारे में, दैट इज ये क्या करता है, डैमेज ऑफ अल्वेओलर वॉल। ओके, सिगारेट स्मोकिंग की वजह से होता है, किसकी वजह से हो रहा है, सिगारेट स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। नंबर 1 कॉज, सिगारेट स्मोकिंग कॉजेस, कॉजेस डॅमेज टू अल्वेओलर वॉल, अल्वेओलर वॉलच डॅमेज होते, त्याच्यामुळे ह्याला प्रॉब्लेम होतो। डॅमेज टू अल्वेओलर वॉल ही डॅमेज होते, अल्वेओलर वॉल, त्यामुळे मुलांना प्रॉब्लेम होतो एम्फायसेमा मध्ये। ब्रॉन्कायटिस, अस्थमा मध्ये इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रॉन्काय आणि ब्रॉन्क्युल्स होतो बरं का, ते तर मी बोलणारच आहे। पुढे एक दैट इज इन्फेक्शन आहे, हा ब्रॉन्कायटिस काय, इन्फेक्शन कॉजिंग, इन्फेक्शन कॉजिंग इन्फ्लामेशन ऑफ, एमसीक्यू, इन्फ्लामेशन ऑफ दोस्तों दैट इज ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से इन्फ्लामेशन होता है, दैट इज ब्रोंकाइटिस। ट्यूबरक्यूलोसिस दोस्तों कॉज ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, माइकोबैक्टीरियम। इंडिया म्हणले की टीबी, और टीबी बोले तो इंडिया इतना ज्यादा है, 70% ऑफ इंडियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद ट्यूबरक्यूलोसिस, 70%। बट दोस्तों, okay, because of our immunity the disease is not flourished yet, so mycobacterium tuberculosis, tuberculosis बैक्टीरिया का नाम और डिसीज का नाम ऑलमोस्ट सेम है। निमोनिया, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ अल्वेओलाई, निमोनिया क्या है, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ अल्वेओलाई, ये इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ अल्वेओलाई एंड अल्वेओलार सैक जो है दोस्तों, अल्वेओलार सैक is filled with fluid, MCQ is filled with fluid, लंग्स में पानी भर जाना, निमोनिया, यही तो हो रहा है कोविड-19 में, यही तो हो रहा है दोस्तों। नाउ कॉमन कोल्ड, फ्लू और कोराइजा, ये है सीसीएफ, कफ कोल्ड और फीवर। सीसीएफ सर्दी ताप खोखला, सर्दी ताप खोखला, कफ कोल्ड फीवर, कफ कोल्ड फीवर, सीसीएफ कॉमन कोल्ड। ओके, कॉज्ड बाय अफेक्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कीवर्ड, अगर कुछ याद नहीं तो इतना तो भी याद करो, अफेक्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, निमोनिया अफेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, मीन्स अल्वेओलाई, कशाच्या खाली म्हणायचं, लॅरिंग्सच्या खाली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, लॅरिंग्सच्या वरचा पार्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट। सो दिस अफेक्ट दोस्तों, दिस अफेक्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, खास करून नोज रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट अफेक्ट करतो, हा लक्षात ठेवा, कॉमन कोल्ड। आणि मग सर्दी, ओके,
त्याला ऍड येते बघा ऍनासिनची. नाक बंद है, हाँ भाई हाँ. सरदर्द हो रहा है, हाँ भाई हाँ. तसं है. नेजल कंजेशन हो सकता है या फिर नेजल सिक्रेशन बढ़ेगा या फिर कंजेशन हो जाएगा. ओके, तो ये है कॉमन कोल्ड फ्लू. थोड़ा सा फीवर आ जाएगा. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, याद रखो. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किसे कहेंगे? अबो द लैरिंग्स. डिप्थीरिया, ओहो ये बहुत ही डेंजरस डिसऑर्डर है. इन्फ्लामेशन ऑफ, हे खतरनाक डेंजरस डिसऑर्डर आहे. डिप्थीरियाची जर केस मी तुम्हाला दाखवली, 2-3 केसेस दाखवणार आहे. इन्फ्लामेशन ऑफ दोस्तों म्यूकस मेम्ब्रेन जी असते ना, ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन. केल्याच्या नंतर डॉक्टर काय तुमचे दात बघत नसतात, डॉक्टर आतमधलं फॅरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन देखते. डॉक्टर क्या देखते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फैरिंग्स. तो फैरिंग्स या फिर लैरिंग्स दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फैरिंग्स एंड लैरिंग्स, इन दोनों की इन्फ्लामेशन, इनके म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन होती है डिप्थीरिया में, तो होता है फेरेंजाइटिस और लैरेंजाइटिस. फेरेंजाइटिस और लैरेंजाइटिस. ये हुपिंग कफ है. इट इज आल्सो नोन एज, ये बहुत ही डेंजर डिसऑर्डर है दोस्तों. यह सिर्फ छोटे बच्चों जो होते हैं 1 साल के अंदर, उनको होता है. परटूसिस बोला जाता है उसको, परटूसिस. हुपिंग कफ इज आल्सो कॉल्ड परटूसिस. क्या नाम है इसका? परटूसिस. परटूसिस डिटेल में भी जाएंगे, पर याद रखो परटूसिस, एंड इट इज कॉल्ड बाय बॉर्डेटेला परटूसिस. कॉज्ड बाय, आल्सो कॉल्ड एज परटूसिस, और कॉज्ड बाय बैक्टीरिया का नाम है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जिसका नाम है वाओ बॉर्डेटेला. कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दैट इज दोस्तों बॉर्डेटेला परटूसिस. ए चला रे खाली, तुम्ही अख्ख्या जगाला बेजार केले. चला, तुमचं स्थान म्हणून सगळ्यात खाली आहे. सार्स आणि कोविड, मोठा भाऊ सार, छोटा भाऊ कोविड. सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ परटूसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बॉर्डेटेला. बैक्टीरिया का नाम क्या है? कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दोस्तों, बॉर्डेटेला परटूसिस. हे पुढे एमसीक्यू आहेत. कुठलं घेतलंय मी हे सगळं टॉपिक? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 12th साइंस, वहां पे ये सब है. ओके, ये हुपिंग कफ, ये डिप्थीरिया, ये कॉमन कोल्ड, ये निमोनिया, ये टीबी, ये तो यहाँ पे है. सो बॉर्डेटेला परटूसिस नाम की एक बैक्टीरिया, वो कॉज करती है हुपिंग कफ. बहुत डेंजर डिसऑर्डर है और सिर्फ छोटे बच्चों में होता है हुपिंग कफ. डांगा खोखला, क्या बात है. म्हणतात ह्याला, मराठीत काय म्हणतात? डांग्या खोकला. लक्षात ठेवा, बहुत डेंजर है ये डांग्या खोखला. याला मराठीत म्हणतात डांग्या खोखला, हिंदी में बोलते हैं इसे काली खांसी. ये है डांग्या खोखला. काय नाव है? डांग्या खोखला. आदमी खोखला हो जाता है, आदमी बोले तो बच्चों, ये है डांग्या खोखला. या फिर ये मराठी मध्ये अरे ह्याला म्हणतात काली खांसी. हिंदी में काय म्हणतात त्याला? काली खांसी. ये शब्द है एनसीईआरटी में, काली खांसी. ये एनसीईआरटी में शब्द है दोस्तों, काली खांसी, याद रखो. ओके, गलघोटू डिप्थीरिया को बोलते हैं. गलघोटू, ये जो नेक है ना, गळा घोटणारा. गलघोटू मीन्स गळा घोटणारा. हा बुल नेक, बैलासारखं मान होती एवढी मोठी याची, सुजून जातो सगळं बेडका सारखं. आणि हे जे रेस्पिरेटरी ट्रॅक आहे हा ऑब्स्ट्रॅक्ट झाल्यासारखं होतो, म्हणून त्याला गलघोटू म्हणतात. ये जो डिप्थीरिया है, ये जो डिप्थीरिया है, इसे कहते दोस्तों गलघोटू, याद रखो. इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है गलघोटू. ते इंग्लिश मध्ये नाव आहे बरं का, गलघोटू म्हणजे GALGHOTU. तसं मी इथं गलघोटू तसं मराठीत लिहितो, हिंदीमध्ये डिप्थीरिया म्हणजे गलघोटू. लक्षात ठेवा. होपिंग कफ, काली खांसी, होपिंग कफ. और ये सार्स बड़ा भाई और कोविड छोटा भाई. ये जो सार्स है दोनों कॉज बाय
कोरोना वायरस। ये जो दोनों कॉज्ड बाय दोस्तों, कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। और ये दोनों डिसीज चीन में ही डिटेक्ट किए गए हैं 26 फरवरी इन 2003। ओके, 26 फरवरी 2003 में दोस्तों ये सार्स डिटेक्ट किया गया। व्हाट इज सार्स? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम? है सार्स। मींस इसके पहले भी अगर साजिश है तो 2003 में भी चीन ने ये साजिश की थी। यह सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स कॉज्ड बाय ह्यूमन कोरोना वायरस। फिर उसी में अभी म्यूटेशन, ये जो ह्यूमन कोरोना वायरस है या फिर कोरोना वायरस है, इसी में म्यूटेशन होके अभी बना है डिसीज कोविड-19। कोविड का मतलब है कोरोना वायरस, कोरोना वायरल डिसऑर्डर, कोरोना वायरस डिसऑर्डर। ओके, कोरोना सी फॉर कोरोना, वी आई फॉर वायरल, डी फॉर डिसऑर्डर। और 2019 में दिसंबर 2019 में इसे डिटेक्ट किया गया वुहान में, फर्स्ट टाइम इन चाइना, तो इसलिए इसका नाम है कोविड-19। तो ये भी इनिशियली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा, मींस सर्दी ताप खोखला होइल later on, okay, eventually after 5 days 6 days or after the infection of 8 days, it affects the lower respiratory tract, that is the alveoli, and causes pneumonia, means inflammation of alveoli, and that alveoli are filled with fluid, तो वो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये निमोनिया जो है दोस्तों, इट इज कॉज्ड बाय, ये मैंने सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन, ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्तों, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, even the mycoplasma. Pneumonia is caused by viruses, bacteria, fungi और mycoplasma. Most common bacteria होती है Streptococcus pneumoniae. बोम मारू मारू सांगायले की निमोनी, मेरा नाम है निमोनी तो आई कॉजेस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। प्लूराइटिस राहिला, प्लूराइटिस ये इसी में होता है, कभी कभी टीबी में हो गए। प्लूराइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा, टीबी में वगैरह होता है प्लूराइटिस। जब टीबी होगा लंग्स का तो प्लूराइटिस होने के भी चांसेस है दोस्तों। तो ये इनके नाम है, किनके नाम है? ये जो नाम है डांजा खोखला और काली खांसी, ये नाम है हुपिंग कफ के, ये नाम है हुपिंग कफ के। ओके, तो दोस्तों थोड़ा सा रुकता हूं यहीं पे। तो आज ये टॉपिक हो सकता था पर कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे अस्थमा, एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, हुपिंग कफ, सार्स, कोविड, इसके बारे में थोड़े से दो तीन वाक्य का सेंटेंसेस आपको लिख के देने हैं। ओके, वीजिंग होता है अस्थमा में, कल बात करेंगे। और अस्थमा को एक कनेक्टिव एमसीक्यू आया था दोस्तों, एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, 12th साइंस में। तो वहां पे एक कनेक्टिव टॉपिक आया था कि आपको पता है कैरोट ग्रास, कांग्रेस, पार्थेनियम, पार्थेनियम पता है ना, कांग्रेस गवत, उसके पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है और वो एलर्जी लेटर ऑन गेट कन्वर्टेड इनटू अस्थमा, तो उसमें वीजिंग भी आ सकती है। तो एलर्जिक डिसऑर्डर है, तो ये कनेक्टिव एमसीक्यू आया था। तो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें वीजिंग हो रहा है और कॉज्ड बिकॉज ऑफ एलर्जी ऑफ पार्थेनियम। तो वहां पे ये सब नहीं दिया था, पर याद रखो अस्थमा उसका नाम है। मैं दोनों आपको कनेक्ट करके बताना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक वीडियो देखते हैं हुपिंग कप का। आप हैरान हो जाओगे, अरे बाप, ये है हुपिंग कप। हुपिंग कप, ये देखो, ये गूगल माइंड को भी पढ़ लेता है शायद। ओके, यू कांट बिलीव कि इतना डेंजरस हो सकता है, यू कांट बिलीव। पर्टोसिस, अरे मुझे वीडियो चाहिए। See this, see this. तुम्हाला आवाज येत नाहीये? ओके,
दिस तुम्हाला आवाज येणार नाही पण हा व्हिडिओ बघू. In adults, the symptoms can be mild, but if the infection is spread to a baby who hasn't yet received the full course of vaccination, whooping cough can be very serious. Here's more on how to handle this disease. 21-month-old Pedro's greatest symptom. न्यूज आहे ही ऍक्च्युअली, पण एकदम डेंजर असतं याचं, तुम्ही इमॅजिन सुद्धा करणार नाही एवढं डेंजर असतं. जस्ट वेट. हुपिंग कफ. ओके. मायो क्लिनिक खूप मोठं यूएसचं हे आहे ते हॉस्पिटल, पण खूप जास्त खोकला असतो, खूप जास्त खोकला असतो. लक्षात ठेवा, हुपिंग कप मध्ये इमॅजिनेशनच्या बाहेर खोकला असतो. तो प्रॉपर व्हिडिओ सापडत नाहीये. हा बघा बच्चा. तुम्ही आवाज ऐका, हा व्हिडिओ बघा. ठीक है चलो. ओके. See this image. Okay. See this image. Diphtheria. Okay. याची नेक बघा केवढी झाली. हे इकडे इन्फेक्शन झालं याला. ओके. गलघोटू, कारण की याच्या फॅरिंग्सला इन्फेक्शन झालं आत म्हणून नेक ची स्वेलिंग झाली. ओके. डिप्थेरिया दॅट इज अ नॅझोफॅरिंग्स फॅरेंजियल विथ बुल नेक म्हणतात त्याला. बुल नेक त्याचा सिम्पटम आहे. ह्या बच्चूची बघा केवढी मोठी नेक झाली, घशाचं इन्फेक्शन झालंय. डिप्थेरिया, गलघोटू, असा गळा, आणि हे स्वेलिंग मुळे गळा घोटल्यासारखं वाटतंय. ये डिप्थेरिया है, गलघोटू. ये हमें पता होना चाहिए कि गलघोटू या फिर क्या है दोस्तों. और अगर देखोगे तो अंदर इन्फेक्शन होता है. कहाँ पे? ये जो आ करने को बोल रहे हैं डॉक्टर, ओके, वहां पे इन्फेक्शन होता है. देखो यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है. सीधे ये यहाँ देखो पस हुआ है. ये क्या है? टंग. ओके, टंग है. ये है पैलेट, और ये जो पस दिख रहा है दैट इज अ पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है. पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है, वहां इन्फेक्शन हुआ है ये डिप्थेरिया का. और एक डिप्थेरिक मेम्ब्रेन आ जाती है. मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, मुझे सिर्फ ये बताना है ये गलघोटू क्यों कहा गया है. ओके, आई एम नॉट हियर टू टीच यू मेडिकल साइंस, बट इसको गलघोटू क्यों कहा गया है ये आपको पता होना चाहिए. अस्थमा बाकी सब का डिटेल में जान लेंगे, पर ये याद रखो. ओके, कोविड को तो बताने की जरूरत नहीं, कोविड आपको पता है क्या है. तो फिर भी दोस्तों, सो रुकते हैं यहीं पे. डिप्थीरिया इज वेरी डेंजरस टू सी. यस. हुपिंग कफ फेटल है. यस. और ये बैक्टीरियल डिसऑर्डर है. ये एक नाम है एक वैक्सीन का, डीपीटी नाम की एक वैक्सीन है. डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस के अगेंस्ट काम करती है. डीपीटी नाम की एक वैक्सीन है. जरा डिटेल में जाने वाले हम इसके, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट. कल ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा. परसों से चालू हो जाएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. जो बच्चे नए हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि परसों से हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं. अगर अभी आप कुछ आपके जो भी डाउट है, कुछ करेक्शंस है, तो मैं वो तो करने वाला हूँ डीपीपी में. जस्ट वेट. बेग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बोल दो. समझ में आया आपको कि ब्रीदिंग क्या है, व्हाट इज द लेवल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल दैट. आपको समझ में आया दोस्तों? यस और नो बोलो. समझ में आया या नहीं? ओके सर, इफ डेल्टा प्लस भी कोरोना से होता है कि? यस, वो भी कोरोना का ही वेरिएंट है दोस्तों. ये जो कोरोना वायरस है ना, आरएनए वायरस है.
तो ये खुद में अपना जेनेटिक्स चेंज कर लेता है, जेनेटिक मटेरियल, इसकी वजह से ओके ये नए नए वेरिएंट बन रहे हैं। ओके सर अस्थमा से डेथ हो सकती है क्या? नहीं, एक्यूट अटैक आ गया अस्थमा का और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली, उसको इनहेलर नहीं मिला जो उसमें जिसमें ब्रोंको डायलेटर होते हैं। अस्थमा में क्या होता है पता है क्या? ब्रोंकस जो है, सपोज इसका डायमीटर ये है ब्रोंका और ब्रोंक्यूल्स का, वो ऐसा कम होता है, इतना डायमीटर है, डायमीटर इतना है, तो वो ऐसा कम होता है। ओके कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकस होता है या ब्रोंक्यूल्स, दैट इज अस्थमा। कल डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अस्थमा से डेथ होने के चांसेस बहुत कम है, पर अस्थमा की वजह से बहुत, अब ऐसे जिसको अस्थमा है उसको कोविड हो गया तो उसकी डेथ होने के चांसेस है, जिसको अस्थमा है उसको टीबी हो गया तो डेथ होने के चांसेस है। अस्थमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। सर इन्फेक्शन स्टॉप कैसे हुआ? व्हाट इज इन्फेक्शन स्टॉप? इसलिए हुआ है कि ये इस एनी वायरल डिसीज सेल्फ लिमिटिंग डिसीज, और इस वायरस का नेचर ऐसा है कि कभी वो एक्टिवेट हो रहा है तो कभी थोड़ा सा इनएक्टिव फॉर्म में रह रहा है, कभी एक्टिवेट होता है तो कभी इनएक्टिव फॉर्म में है। अभी वो गया नहीं है, स्टिल दैट वायरस इज इन्वायरमेंट में नहीं होता है। लोग बोलते हैं वायरस इन्वायरमेंट में है, गलत। वायरस इन्वायरमेंट में इनर्ट होता है, वो जिंदा नहीं रह सकता ज्यादा देर के लिए। ओके वो तो जिंदा ही नहीं है एक्चुअली, पर फिर भी वो होस्ट में है, हमारे बॉडी में है, किसी ना किसी पेशेंट के बॉडी में है, तो थोड़ा सा भी इनएक्टिव हुआ है, उसका नेचर ही ऐसा है, एक्टिव हो जाना, इनएक्टिव हो जाना, एक्टिव हो जाना, इनएक्टिव, फिर से वो एक्टिव होने के चांसेस है। ओके और फिर से अलग अलग वेव्स आने के चांसेस। आई हैव सेंड अ क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप। ओके अस्थमा हेरिडिटरी डिसऑर्डर का है? यस देयर आर सर्टेन हेरिडिटरी कंडीशंस। हेरिडिटरी तो नहीं है पर फैमिली हिस्ट्री कहते हैं उसे। देयर इज अ क्लियर कट, आपको पता होना चाहिए कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर किसे कहते हैं और फैमिली हिस्ट्री वाला डिसऑर्डर किसे कहते हैं। हेरिडिटरी डिसऑर्डर मीन्स अपने मम्मी पापा में वो डिसीज है और हम में भी आ गया, उसे कहते हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर, ठीक है। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, जैसे हिमोफीलिया, वो आना ही आने वाला है। बट अस्थमा होगा या नहीं होगा, ब्लड प्रेशर बढ़े होगा या नहीं होगा, तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, दे आर एक्चुअली नॉट हेरिडिटरी। ओके वो कंपल्सरी हेरिडिटरी नहीं है, पर फैमिली हिस्ट्री ये है कि अगर मेरे घर वालों को, मम्मी पापा को, किसी को एक को अस्थमा है तो देयर में भी चांसेस को मुझे भी डेवलप हो जाए, ऐसा होता है। सार्स के वैक्सीन है क्या? सार्स के वैक्सीन है ना। व्हेन कोरोना विल गेट इनएक्टिव, बता नहीं सकते। पर्टुसिस अडल्ट में होता है पर वो बहुत ही माइल्ड होता है, जैसे अपना सर्दी तप खोखला वैसा है, बच्चों में बहुत सीरियस होता है। whooping cup can cause death, yes, whooping cup also can cause death बेटा, हो सकता है अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। डीपीपी डिस्कशन बात करेंगे। टीबी फेटल है क्या? यस 101% फेटल है। एड्स पेशेंट की जो डेथ होती है दैट इज कॉज बिकॉज ऑफ टीबी। एड्स पेशेंट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एड्स पेशेंट ट्यूबरक्युलोसिस। डिप्थेरिया केस मध्ये पेशेंटची व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सिलिया? मूवमेंट कम हो जाएगा सिलिया का। ओके सिलिया का मूवमेंट कम हो जाता है स्मोकिंग से। अस्थमा लाइफ टाइम डिसीज है क्या? यस अस्थमा इज नॉट क्यूरेबल, इट इज ओनली ट्रीटेबल डिसऑर्डर। व्हाट इज आरआरसी? बहुत बढ़िया शुभम, आरआरसी म्हणजे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सर स्नोरिंग इज अ सिम्टम ऑफ अस्थमा, गलत। स्नोरिंग इज नॉट सिम्टम ऑफ अस्थमा, मैंने बोला है स्नोरिंग क्या है, देखो जरा। स्नोरिंग क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारा वोकल कॉर्ड है उसका वाइब्रेशन होता है, क्योंकि जो ये ट्रैक है रेस्पिरेटरी ट्रैक वो पार्शियली ब्लॉक किया जाता है टंग की वजह से, और वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है, इसलिए स्नोरिंग है। इट इज नॉट सिम्टम ऑफ अस्थमा। अस्थमा का सिम्टम है वीजिंग, अस्थमा का सिम्टम है वीजिंग। वीजिंग 100 ml of deoxygenated blood deliver 4 ml of CO2 to the lungs. Yes, yes. Can you explain this line? Explain केलेले तू अक्षय वाचत नाहीये मी ना, आणि 100 ml of oxygenated deliver 500 ml of oxygen to the tissue. तू ते वाचून पाठीमागचं वाचत नाही, याचा अर्थ असा आहे। ते मी लाईन एक्सप्लेन केलेली की कसं असतंय। आर्टेरियल ब्लड मध्ये 20 ml ऑफ ऑक्सिजन आहे आणि व्हेनस ब्लड मध्ये 15 ml ऑफ ऑक्सिजन असतो पर 100 ml। आर्टेरियल ब्लड में 100 ml 20 ml ऑक्सीजन है और वीनस ब्लड में 15 है, सिर्फ 15 है, तो 5 कहाँ गया? वो 5 टिश्यू को गया है, मैंने एक्सप्लेन किया था।
ओके, चाहे तो आप देख लो कौन सा टॉपिक है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, शायद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के शुरुआत में। ओके, तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, कुछ खुद वर्क करने की कोशिश करो, ओके, तभी जाके आपका नंबर लगने वाला है। आपने दिया था, मैंने दिया है ना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या है, ये सोनी बेटा सारंग, पल्मोनरी हाइपरटेंशन मींस देयर इज अ इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर ऑफ पल्मोनरी वेसल्स, इसे कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। बाकी उस पेशेंट को, पेशेंट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम, और पेशेंट डू नॉट हैविंग हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर, okay, a patient does not have the history of hypertension, but suddenly due to some cause there is increase in the pressure of pulmonary blood vessel, pulmonary artery, इसे कहते हैं pulmonary hypertension, और ये dangerous condition है, डेथ हो सकती है पेशेंट की। whooping cough is caused by only in kid, नहीं, kids में severe है, fatal है, adult में mild disorder है whooping cough, जो children है उनमें danger condition है। what are the reason for the human, what is the reason for the human to die of diseases? नहीं समझा बेटा, ये चिन्मय आपका क्वेश्चन नहीं समझा सर, साइड 3 ची डायग्राम नहीं समजली, श्रीधर बर सांगतो, व्हाट इज मीन बाय ब्लड बफर? श्रेया बेटा, ये ब्लड बफर, ये कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस का तो नहीं है, पर ये H+ आयन और हीमोग्लोबिन के बीच में एक रिएक्शन होती है, तो ये है, कल इसके बाद बात करेंगे ब्लड बफर क्या होता है। ये जो H+ आयन अगर ब्लड में रिलीज हो रहा है बेटा, H+ आयन ब्लड में रिलीज हो रहा है, तो देयर में बी चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ ब्लड, देयर में बी चांसेस ऑफ इंक्रीज्ड एसिडोसिस, क्योंकि H+ आयन जितना बढ़ेगा उतनी एसिडिटी बढ़ेगी। तो बर्डनिंग बफर क्या है, व्हाट इज बफर, क्या है बफर? बफर पता है आपको केमिस्ट्री में किसे कहते हैं बफर? बफर एक ऐसा केमिकल है या फिर ऐसा सब्सटेंस है जो एसिडिटी या फिर जो अल्कलाइन नेचर है उसको चेंज नहीं होने देता, वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता है, वो हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर, हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर। जो भी H+ आयन रिलीज हो रहे हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं टेम्पररीली, ओके, ताकि वो ब्लड की एसिडिटी ना बढ़े, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड बफर। ओके सर, मिस्टर इम्फाइसेमा स्मोकिंग, मिस्टर अस्थमा व्हीजिंग, मिस्टर ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम, मिस्टर सांस कोविड को कोरोना गावकर, मिस्टर डिप्थीरिया, मस्क्यूल इन्फा, ओके, मिस्टर निमोनिया अल्वेओला इन्फ्ला, सर आई ट्राइड कनेक्ट दीज, प्लीज गाइड मी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिस्टर डिप्थीरिया गलघोटू ऐसा लिखो, मिस्टर हुपिंग पर्टोसिस ऐसा लिखो, मिस्टर निमोनिया, ओके, मिस्टर निमोनिया अल्वेओला ऐसा लिखो, अल्वेओला इन्फ्ला नहीं लिखा तो चलेगा क्योंकि अल्वेओला इन्वॉल्व होते हैं, ओके। मिस्टर अस्थमा वीजिंग 1 नंबर है, मिस्टर इम्फाइसेमा स्मोकिंग 1 नंबर है, मिस्टर टीबी माइकोबैक्टीरियम ये भी है, बहुत बढ़िया विधि, सही जा रहे हो, ओके। सर म्युटेशन होणं म्हणजे 1 स्टेज डेव्हलप होणं असं का? कारण कोरोनामध्ये म्युटेशन होऊन तो अजून स्ट्रॉंग होता है। यस, mutation is a sudden and abrupt change in the genetic material which lead to the change in the phenotype of that organism, that is called a mutation। ये तो डेफिनेशन हो गई बुक की, पर एग्जैक्ट क्या होता है कि जीन जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल वो चेंज हो जाएगा और मैं सलमान खान जैसा देखने लगूंगा, दैट इज कॉल्ड ए म्यूटेशन। ओके, मुझ में म्यूटेशन हो जाएगा और मेरे अंदर जो कुछ स्किन कलर है, स्किन कलर कंट्रोल करने वाली जो जीन है, अगर उसमें म्यूटेशन हो गया दोस्तों, और जो मेलानिन बनाने वाला जीन ही डीएक्टिवेट हो गया, तो मैं गोरा हो जाऊंगा, मेरे बॉडी के अंदर मेलानिन नहीं बनेगा और मेरी जो स्किन है, अभी भी गोरा हूं। ओके, काला किसे कहते हैं? ओके, काला किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। ब्लैक कलर क्या है? व्हाट इज ब्लैक कलर? ओके, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? काला कुछ भी नहीं है, काला ये मोबाइल की स्क्रीन काली है, ये मोबाइल की स्क्रीन काली है, ये भी काली नहीं है। ओके, अभी ये मोबाइल की स्क्रीन काली है, इतना काला तो कोई नहीं है। कंपेयर दिस स्क्रीन विथ योर स्किन, तो आपको पता चला जाएगा कि आप काले नहीं हो। तो ये भी हमारे सिलेबस में है, स्किन का इनहेरिटेंस। तो ये है म्यूटेशन, जेनेटिक डीएनए में चेंज होता है और एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंज होता है ह्यूमन बीइंग के या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के, इसे कहते हैं म्यूटेशन, और ये सडन होता है।
ऐसे ऐसे। तो म्यूटेशन इसमें हो रहा है, खुद का डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वो चेंज कर रहा है, इसीलिए उसके ऊपर जो प्रोटीन कोट है और उसके जो स्पाइक्स है, वो स्पाइक्स वो ज्यादा इन्फेक्टिव बन रहे हैं, ज्यादा पैथोजेनिसिटी कॉज कर रहे हैं, ये हो रहा है उसमें। ठीक है, 5 ml of oxygen at a tissue is strenuously condition. What is mean by blood buffer? बता दिया मैंने। Who is new health minister of India? पता नहीं बेटा। Okay, I am not prepare you for UPSC. Okay, आपको पता है तो बोल दो। Okay, people with white color don't have melanin in their body. मेलानिन कोई भी नहीं है उनके बॉडी में। ये टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मैं आपको बता दूंगा, और तब जाके आपको कोई भी ये नहीं होगा कि अरे मैं काला हूं, और ऑल कोई काला नहीं है दुनिया में, सब हम गोरे हैं। काले लोग मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। ओके, गोरे तो नहीं पर फियर, वेरी फियर ऐसे होते हैं स्टेज, तो हम फियर तो है। जो लोग डार्क होते हैं उनमें ना मेलानिन ज्यादा सिंथेसिस होता है। ट्यूबरक्युलोसिस होण्याच्या जास्त चान्सेस कशापासून असतो प्लीज सांगा। टीबी बैक्टीरियापासून। टीबी बैक्टीरिया से होता है। अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गए किसी भी वजह से, तो हमें टीबी होने के चांसेस है। अगर हम उस पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए, ट्यूबरक्युलोसिस ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट की वजह से होता है, और मे बी इट स्प्रेड थ्रू द some utensil or some material also. Common cold bacterial disorder है क्या? Common cold is a viral disorder caused by rhinovirus, कल बात करेंगे। Common cold is a viral disorder, rhinovirus. Sir, please discuss DPP. Okay, बाकी आणखीन बेटा आयुष करेक्शन बाकी, आणि काही लोकांची दिनं पण बाकी असेल। मतलब मेलानिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मेलानिन है ही नहीं। जो लोग अल्बिनिझम, ज्याला कोड फुटला म्हणतो ना आपण, पांढरा कोड येतो ना, तिथं त्याच्या एवढ्या स्किनवर किंवा त्याच्या पूर्ण बॉडीवर मेलॅनिनच तयार होत नाही, म्हणून ते पांढरं दिसतं तसं। सर नॉट सॉल्व डीपीपी टिल नाउ, प्लीज टेक डिस्कशन आफ्टर। यस सर, ह्यूमन म्यूटेट, यस, हम म्यूटेशन, हमें म्यूटेशन होके ही इतना इवोल्यूशन हुआ है। दो कारण है हमारे बॉडी के अंदर इवोल्यूशन होने के, एक है म्यूटेशन, दूसरा है दोस्तों रिकॉम्बिनेशन। और हर कैंसर में म्यूटेशन होता है। कैंसर कब होता है? जब जीन में म्यूटेशन होता है तब कैंसर होता है। जब जीन में म्यूटेशन होता है तब कैंसर होता है। एमसीक्यू ऑफ द डे घ्या, घेऊ शकतो। सर विटिलिगो तेच आहे का? विटिलिगो म्हणजे तेच सर, बट आवर म्यूटेशन ओनली इन सम पार्ट। सम पार्ट तेच असतं ना, पूर्ण बॉडी मध्ये नसतं होत म्यूटेशन कधी। कोरोना में सिलेबसचा विचारा, सोडून देते। डिप्थेरिया केस मध्ये पेशंटची डेथ होते का? होते। वेयर आर द सेंसरी सेल प्रेजेंट? कौन से सेंसरी सेल? पूरे बॉडी में है, पर कौन से? सर मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, हाउ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा सिलेबस के बाहर का है, फिर भी बताता हूँ। मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रेस कंडीशन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एड्रेनालिन, और वो एड्रेनालिन कॉजेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तुम्ही गार्डन मध्ये पाणी देताय, इमॅजिन करा, गार्डन तुमचं मोठं हॉस्पिटल आहे, हॉस्पिटलच्या वर घर आहे, पाठीमागं मोठं असं गार्डन आहे, त्या गार्डन मध्ये तुम्ही पाणी देताय, मोठे फेमस न्यूरोसर्जन आहेत, यूरोलॉजिस्ट आहेत काय बी, आणि तुमच्या हातात पाण्याचा पाईप आहे, आणि तुम्हाला लांब पाणी पाठवायचं आहे, तुम्ही ते पाईप प्रेस करता, तो पाईप प्रेस झाला की प्रेशर वाढतं आणि पाणी लांब जातं। तसंच आहे, ब्लड व्हेसल प्रेस झाल्या की ब्लड प्रेशर वाढतं, आणि ते प्रेस व्हायचं काम करत असतं अड्रेनालिन। अड्रेनालिन इज रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड इमरजेंसी सिचुएशन। ड्यूरिंग स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन में एड्रेनालिन रिलीज होता है, व्हिच कॉजेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ दैट ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन होने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ता है। समझा? समझा? निमोनिया में प्लूरल फ्लूइड भी बढ़ता है क्या? नहीं, बढ़ेगा ही ऐसा नहीं है। निमोनिया में अल्वेओलाई के अंदर का फ्लूइड बढ़ता है। ओके, डू द लंग हैव ब्लड सप्लाई? इफ यस देन व्हाट इज दैट? लंग को ब्लड सप्लाई बेटा उसे कहते हैं ब्रोंकियल आर्टरी और ब्रोंकियल वेन। ब्रोंकियल आर्टरी और ब्रोंकियल वेन, लंग्स को ब्लड सप्लाई होता है। ओके, लंग्स को ब्लड सप्लाई है बेटा, ब्रोंकियल आर्टरी और ब्रोंकियल वेन।
ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमारे जो नोट्स है, शायद उसको जस्ट वेट। ओके, अरे खुल जा सिम सिम भाई। ओपन नहीं हो रहा है। ये ओपन हो गया बिना काम का। ओके, so pneumotaxic center present in pons varroa, it moderate the function of respiratory rhythm center. When pneumotaxic center is activated, it inhibit the inspiration and decreases the duration of inspiration. Normal respiratory rate 12 से 16 breath per minute in adult. Normal respiratory rate किसमें है दोस्तों? In infant. In infant. बच्चों में कितना है याद रखो, 40 से 44 breath per minute in infant. नोट न्यूनेट म्हणजे 28 दिवसापेक्षा छोटा बच्चू, इन्फंट म्हणजे 1 वर्षापेक्षा छोटा बच्चू. पुढे बोलूया. चालतं का हे? चालतंय वाटतं. चालतंय. Chemical regulation of respiration, it is only what is receptor? It is any cell, tissue or organ in our body which detect and receive stimulus and convert that stimulus into nerve impulse. Stimulus is any change in the external or internal environment. Nerve, sensory nerve म्हणजे काय? The nerve which sends signal from receptor to CNS. Now what is meant by दोस्तों? Motor nerve. Motor nerve, these are the nerve which send signal from CNS to effector. छान. तो ये जो डायग्राम है इसे देख लो जरा. ये है दोस्तों रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये है आर्च ऑफ आवर्टा, उससे एक ब्रांच है कॉमन कैरोटिड आर्टरी. मान लो ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. ओके, तो इसके बाइफर्केशन एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड. इस बाइफर्केशन पे एक बॉडीज है, उसको कहते हैं कैरोटिड बॉडी, ये मेन है, और इच आर्च ऑफ आवर्टिक बॉडी होते हैं आर्च ऑफ आवर्टा में. और ये जो कैरोटिड बॉडी और आवर्टिक बॉडी क्या करते हैं? दे डिटेक्ट द इंक्रीज, ये कीमो रिसेप्टर, दीज टू आर कीमो रिसेप्टर. दे डिटेक्ट द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन, लिहू नका कोणी, मी काय वाचत नाही. दे डिटेक्ट द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डायऑक्साइड और H+ आयन इन ब्लड and send a signal. These are the nerve. They send a signal to the respiratory rhythm center of medulla oblongata कि बोलते हैं भैया अरे respiratory rhythm center ब्लड में ना CO2 और H+ आयन बढ़ा है, जरा उसको बाहर फेंक CO2 को. तो ये respiratory rhythm center get activated and there will be increase in the rate of respiration. तो यही है दोस्तों, यही एक कॉन्सेप्ट है. आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ ये सिनारियो है. आगे का सिनारियो कुछ ऐसा है कि फिर देखो ये केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में कीमो रिसेप्टर है. देयर आर रिसेप्टर व्हिच डिटेक्ट द चेंज इन द लेवल ऑफ केमिकल इन बॉडी. फॉर रेस्पिरेशन दो है, कैरोटिड बॉडीज वो मेन है, और आवर्टिक बॉडीज दूसरे है. कैरोटिड बॉडीज लोकेटेड एट द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, आवर्टिक बॉडीज लोकेटेड एट द आर्च ऑफ आवर्टा. नाउ जो कीमो रिसेप्टर है डिटेक्ट द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन. कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं? डिटेक्ट द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन इन द ब्लड, सो दे गेट स्टिमुलेटेड. एंड ये जो रिसेप्टर है दोस्तों, दे सेंड अ सिग्नल टू द, कहां पे? दे सेंड अ सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, सो दैट ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगेटा इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन. ये हमने देखा. फिर हमने देखा दोस्तों डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये जो डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इसमें एक नंबर पे आएगा अस्थमा. एक एलर्जिक डिसऑर्डर है जहां पे इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंका और ब्रोंक्यूल का. ब्रोंकस का कंस्ट्रिक्शन होता है
और इसलिए एक नॉइजी ब्रीदिंग होता है, नॉइजी रेस्पिरेशन होता है जिसे कहते हैं विजिंग। ये मेन फीचर है उसका। एम्फाइसेमा कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। ओके मिस्टर एम्फाइसेमा स्मोकिंग, मिस्टर अस्थमा विजिंग, थैंक्स टू विधि मंत्री फ्रॉम सेलू परभणी। ओके एंड उसने ये निमोनिक्स बनाया, कॉज डैमेज टू अल्वेओलर वॉल। यहाँ पे एम्फाइसेमा का मतलब मैं कल डिटेल में बोलूंगा, यहाँ पे ये याद रखो, देयर इज अ अल्वेओलर वॉल का ब्रेकडाउन होता है। ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। निमोनिया में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अल्वेओलाई होता है, अल्वेओलर सैक इज फिल्ड विद फ्लूइड। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। निमोनिया सभी लोग करते हैं, कॉज करते हैं। कॉमन कोल्ड, फ्लूइड और कोराइजा, ये वायरल डिसऑर्डर अफेक्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके और सीसीएफ, सीसीएफ म्हणजे कफ कोल्ड और फीवर होता है। गलघोटू म्हणजे डिप्थीरिया, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ larynx or pharynx and larynx, and diphtheria is also bacterial disorder caused by Corynebacterium diphtheria. फिर है दोस्तों whooping cough, it is also called as pertussis caused by bacteria Bordetella pertussis. ये दोनों बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। फिर है सार्स, सार्स का मतलब होता है यस मतलब सीवियर, ए मतलब एक्यूट, आर म्हणजे रेस्पिरेटरी आणि यस म्हणजे परत सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स। और फिर है कोविड-19, बोथ आर कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। डांगा खोखला और काली खांसी हुपिंग कफ को कहा जाता है, डिप्थीरिया को कहा जाता है गलघोटू। अभी आपके क्वेश्चन। ओके बोलो सर, सर कैन आई लिफ्ट केमिस्ट्री क्लास, जाओ जाओ। कैरोटिड बॉडी आर ओनली लोकेटेड ऑन द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ऑल ओवर नहीं, मोस्टली दे आर लोकेटेड एट द बाइफर्केशन। हाँ ऑल ओवर नहीं, ज्यादा नहीं होते पर मोस्टली बाइफर्केशन के यहाँ पे। आई डिडंट गेट द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ऑफ कीमो रिसेप्टर एंड फंक्शन ऑफ कीमो सेंसिटिव एरिया। शिवानी राकड़े, दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों का फंक्शन सेम है। कीमो सेंसिटिव एरिया मगर ब्रेन में है, वो भी क्या करता है, आजू बाजू में जो भी ब्लड वेसल है वहां पे जो CO2 और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है वो बताता है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। पर ये कीमो रिसेप्टर लोकेशन कहाँ पे है, अरे कीमो सेंसिटिव एरिया तो ब्रेन में है, कीमो रिसेप्टर यहाँ पे है ना लोकेटेड, यहाँ पे लोकेटेड। तो कीमो सेंसिटिव एरिया और कीमो रिसेप्टर आर डूइंग द सेम जॉब, डिफरेंस ही नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। पर कीमो सेंसिटिव एरिया इज प्रेजेंट इन ब्रेन, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यूरल रेगुलेशन। और कीमो सेंसिटिव कीमो रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल, तो ये केमिकल रेगुलेशन का पार्ट होते हैं। शिवानी बेटा थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, आई होप कि आपका ये क्लियर होया होगा। एक न्यूरल रेगुलेशन का पार्ट है, एक केमिकल रेगुलेशन का पार्ट है। सर प्लीज व्हॉट्सअप चेक करा, मी आता तुम्हाला एक मेसेज केला आहे। सर कॉमन कोल्डचा निमोनिक सांगा ना, आय एम नॉट गेटिंग। CCF कफ कोल्ड फीवर, कफ खोकला COUGS, कफ कोल्ड COLD आणि फीवर FUFEVER, कॉमन कफ कोल्ड फीवर CCF म्हणतात त्याला, CCF। वाह वाह, नक्कीच अभिनंदन उन्मेष बेटा, बहुत ही बढ़िया, 40 आउट ऑफ 40, बहुत बढ़िया। हे उद्याच्याला मी थोडंसं सॉल्व करतो याचा किंवा दुपारी घेतो, काय मुलांचे बाकी आहेत। अभिनंदन, पहिल्यांदाच रँक 3 आला, मला सुद्धा वाटलं नव्हतं माझा रँक येईल म्हणून, पण DPP मला सोपी गेली आणि ती मी 3 मिनिट 0306 सेकंद मध्ये सॉल्व केली। वाह, हे तुमच्यामुळे शक्य झालं, थँक्यू सो मच। पण खरं सांगू, हे तुमच्यामुळेच शक्य झालं, हे तुम्ही करताय, मी तर तुम्हाला गाईड करतोय, पण हे तुमच्यामुळे, तुम्ही अभ्यास करताय म्हणून मार्क पडताय। ठीक आहे, थँक्यू सो मच। नेक्स्ट टाइम गुड लक, तुला नक्कीच चांगले मार्क पडतील बेटा। सर कॉमन कोल्डचे निमोनिक सांगा, सांगितलं। पुढं झालाय का तुमचा केमिस्ट्रीचा क्लास सुरू? चला हे असलं बनवायचं शिकत चला, हे नवीन वे आहे अभ्यासाचा। 2 लाईनी, सलमान म्हटलं की खान कसं आठवतं, तसं अस्थमा म्हटलं की व्हिजिंग आठवलं पाहिजे, अलग लक्षात। एम्फायसेमा म्हणलं की स्मोकिंग आठवलं पाहिजे, निमोनिया म्हणलं की फ्लूइड फिल्ड अल्वेओलाई, कॉमन कोल्ड म्हणलं की फ्लू कोरायझा, डिप्थेरिया म्हणजे गलघोटू, हुपिंग कफ म्हणजे पर्टोसिस, हे असं आठवलं पाहिजे एक एक वाक्य प्रत्येक ह्याच्याबद्दल, म्हणून लिहिण्याचा प्रयत्न करतोय। ठीक आहे, अजून 15 मिनिट आहेत क्लास सुरू होण्यासाठी। बरं ठीक आहे, आराम करा, लेक्चर थोडंसं रेस्ट घ्या, नाश्ता करा,
फ्रेश व्हा, तोंडावर पाणी मारा. ठीक आहे, चलो बाय. बर, आणि मी काय आपण आपल्याला लक्षात ठेवा, आपण फाउंडेशन सुरू करतोय, तर मी तुम्हाला फॉर्म पाठवला होता. मला काही फाउंडेशनचं द्या सोडून, तो विषय नाही, पण तुमचे जे सिबलिंग आहेत मला त्यांचं थोडंसं हे भरून पाठवा की ते कितवीला आहेत. म्हणजे कोणी 5वीला आहे, कोणी 6वीला आहे, कोणी 7वीला आहे, कोणी 8वीला आहे, कोणी 9वीला आहे. तर ते मी गुगल फॉर्म पाठवलाय, तेवढा प्लीज भरून द्या. ओके, तुमच्या ग्रुपवर परत आज सेंड करायला सांगतो, तेवढा गुगल फॉर्म भरून देताल. ठीक आहे, चलो बाय. काय आणखी डाउट्स आहेत का, विचारा. सर प्लीज चेक माय एमसीक्यू ऑफ द डे, विधि मंत्री. ओके ओके, करता हूँ बेटा, करता हूँ. हाय बोल दो आप, करता हूँ. कल एमसीक्यू ऑफ द डे ले लेंगे. ओके, कल एमसीक्यू ऑफ द डे ले लेंगे. ओके, ठीक है, चला, चलो बाय.